الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر برادر بزرگ مشفق و مہربان بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان خان صاحب، وہ خطیب بے باک حضرت علامہ شمس الدین صاحب قبلہ رضوی فیضی، وہ جملہ علماء کرام، حاضرین سن اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں جو دن بدن تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی عریانیت میں ہمیں مبتلا کر کے مغرب ننگے پن کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کبھی ہمیں گناہوں کے دلدل میں پھانس کر ہماری عظمت رفتہ کو پامال کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے ماضی سے محروم کر کے ہمیں اپنے مستقبل کی طرف بڑھنے سے ہمارے پیروں کے اندر زنجیر ڈال دینا چاہتا ہے۔ انہی سارے گناہوں کے سیل رواں کے اندر ایک ایسا جرم ہے جو ہماری قوم کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے، ایسی برائی ہے جو ہمارے بچوں کو اپنے اندر جکڑ کر ابھی ان کلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دینا چاہتے ہیں۔ وہ جرم اور اس گناہ کا نام نشہ ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پورے ہندوستان کے اندر نشہ کی مخالفت میں مختلف پروگرامات کیے جا رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہے، کاوشیں کی جا رہی ہے۔ لوگ آج نشہ کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام نے 14.5 صدیاں پہلے نشے کے حوالے سے ایسی ایسی باتوں کو بیان فرمایا کہ آج بھی لوگ اس تک پہنچ نہیں سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو شراب اور جوے سے بچو، اور پھر وہ جوے کے آلات سے بھی بچو، اس لیے کہ یہ ناپاکی ہے، یہ شیطانی حربیں ہیں، تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی میسر آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عام طور پر خمر کا ترجمہ شراب کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی کے اندر جائیں گے تو خمر کا معنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ جو چیز عقل کو ڈھانک لیتی ہے، عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے عقل معوف ہو جائے، عقل کام نہ کرے، ان سب پر خمر کا اطلاق ہوتا ہے سیدنا فاروق اعظم کی اصطلاح کے مطابق۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، عصر کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے، اور یہاں ہماری حیثیت میزبان کی ہے۔ ہم لوگ سنی دعوت اسلامی کے جملہ مبلغین میزبان ہیں، اور ہمارے علماء کرام کا سلسلہ، آمد کا سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو بہت اختصار کے ساتھ اشارے دے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختلف چیزوں سے لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ان لوگوں پر جنہوں نے صرف شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا، اتنا دردناک عذاب مسلط کیا جائے گا جس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور شراب کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ توبہ کرنے سے پہلے پہلے مر گیا، جب اسے اس کی قبر میں رکھا جائے گا، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا، یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا، یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا، اور جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی پیاس کی وجہ سے اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، وہ پانی پانی چلائے گا، وہ پیاس پیاس چلائے گا۔ جس وقت وہ پانی طلب کرے گا، اسے جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جیسے وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا، اس کے منہ کا گوشت، اس کے گالوں کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا۔ وہ کہے گا، ہائے میرے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس وقت فرشتے اس سے کہیں گے، کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج جو نشہ کیا جا رہا ہے، اکثر نشہ کرنے والے اب شراب سے نشہ کم کرتے ہیں۔ کوئی بھنگ سے نشہ کر رہا ہے، کوئی افیون سے نشہ کر رہا ہے، کوئی چرس سے نشہ کر رہا ہے، کوئی ہیروئن سے نشہ کر رہا ہے، کوئی ڈرگ سے نشہ کر رہا ہے۔ یہ سارے نشہ کے جو ہے جدید طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں۔ کوئی دوائیاں پی کر، کوئی گولیاں کھا کر نشہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نشہ کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جس نشہ کی ممانعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہم وہ نشہ نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نشہ کی ممانعت تھی وہ شراب کا نشہ تھا، اب تو گولیاں کھائی جا رہی ہے۔ ہیروئن کا وجود جو ہے رسول اعظم کے دور میں نہیں تھا، کتا گولیوں کا وجود آقا کریم کے دور میں نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔
है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जहां अपने जाहिरी जमाने पर थी वहीं पर कयामत तक के हालात पर थी। मेरे रसूल ने कयामत तक के इजाद होने वाली सारी बुराइयों को देख लिया और आका ने इरशाद फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है, जिससे भी नशा होगा वो हराम ही है और उससे नुकसान होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिरवाइन के अंदर अल्लाह अकबर ऐसा केमिकल डाला जाता है कि अल्लाह अकबर जिसकी वजह से इंसान के फेफड़ों के अंदर जख्म हो जाता है और वो फेफड़े फटने लगते हैं। इंसान को जो है मैदे का कैंसर और मुंह का कैंसर होने के खतरात बढ़ते चले जाते हैं। और याद रखें कि लोग जो है नशे की तरफ जब बढ़ते हैं तो इब्तिदा वो सिगरेट से करते हैं और सिगरेट से इब्तिदा करने के बाद फिर धीरे धीरे वो बड़े नशे की तरफ जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत से लोग जो नशा करते हैं, अगर किसी को पूछा जाए तुम नशा क्यों करते हो, कोई कारोबार में नाकामी की बुनियाद पर जब बेचैन और बेकरार हो जाता है, जब मुस्तरिब हो जाता है, तो उस वक्त वो नशे का आदी हो जाता है। वो सोचता है कि दिमाग का टेंशन दूर करने के लिए, दिमाग का बोझ दूर करने के लिए, दिल का दर्द हल्का करने के लिए नशा करना चाहिए। लेकिन याद रखो नशा इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। हमारे दुखों का इलाज शराब के कड़वे घूंट में नहीं, हमारे दुखों का इलाज हिरवाइन और ड्रग्स में नहीं, हमारे दुखों का इलाज भंग और अफयून के अंदर नहीं, हमारे दुखों का इलाज अगर है तो आइए जरा कुरान की तरफ आए। कुरान कहता है कि अगर तुम्हें दुखों का इलाज चाहिए इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। और अगर दिलों को सुकून चाहिए, दिलों को करार चाहिए, तो मेरे करीम ने इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। दुनिया नशे की मुखालिफत तो कर सकती है लेकिन नशे का हल पेश नहीं कर सकती। तन्हा इस्लाम वो मजहब है जो नशे का हल भी पेश करता है। अगर तुमने दिल के सुकून के लिए नशा किया है तो याद रखना जिस दिन नशा उतरेगा दुख बढ़ते चले जाएंगे, दर्द बढ़ता चला जाएगा, टेंशन बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह का जिक्र करते चले जाओ, दिलों को सुकून मिलता चला जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिनको हिब्रुल उम्मा कहा गया है, उनसे पूछा गया ये बताएं कि अल्लाह के जिक्र से मुराद क्या है। आया करीमा में करीम ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। अल्लाह का जिक्र क्या है? हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं जिक्रुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। उनके कदमों के करीब होते चले जाओ, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता चला जाएगा। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं दिलों को आराम चाहिए तो अल्लाह अकबर वो फरमाते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम सौंपे हैं, अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम चाहे दर्द रजा करते हैं। अपने दर्द का इलाज भी वही है, अपने दुखों का इलाज भी वही है। कारोबार में नाकाम होने वाले नशा करते हैं। अक्सर जवान जो नशा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? उनकी अक्सरियत का जायजा लें तो वो इसलिए नशा करते हैं कि उन्होंने किसी लड़की से दिल लगाया था, उन्होंने किसी के जुल्फ रुखसार की असीर इख्तियार की थी और वहां धोखा होने की वजह से अब उन्होंने सोचा जिंदगी गुजारे तो कहां गुजारे, तो नशा करने वालों की महफिल के अंदर बैठ गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इसका इलाज क्या है? अगर कोई इस तरह नशा करता है कि मोहब्बत में नाकामी हो गई, इश्क में नाकामी हो गई, तो कश लगाने वालों के साथ बैठ गए, नशा करने वालों के साथ बैठ गए। सुन लो, अगर किसी से दिल लगाना है तो किसी के जुल्फ रुखसार से दिल न लगाओ। मेरे करीम के इल्म में ये बात है कि मैंने अपने बंदों को दिल दिया तो कोई हुस्न भी चाहिए, कोई दिलदार भी चाहिए, कोई दिल का मालिक भी चाहिए। तो मेरे करीम ने हमें आवारा नहीं छोड़ दिया, हमें बेहरा रवि का शिकार नहीं छोड़ दिया। दिल को हुस्न पसंद है, दिल की फितरत मोहब्बत है, दिल की फितरत इश्क है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिल वालों के लिए ऐसा दिल
کہ جس کو حسن یوسف بھی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ او عشق میں ناکام ہونے والوں، وہ عشق ہی کیوں کرتے ہو جس میں ناکامی ہو؟ وہ عشق کی طرف ہی کیوں جاتے ہو جہاں دھوکہ دیا جاتا ہو؟ ارے جہاں محبوب بے درد ہو تو ایسے سے بھی محبت کی جاتی ہے، جہاں محبوب ہی بے دل ہو ایسے سے بھی عشق کیا جاتا ہے۔ آؤ اس کے عشق کی طرف، آؤ اس کی محبت کی طرف جس عشق میں کبھی ناکامی نہیں ہے۔ وہ عشق ایک کالے رنگ کے بلال کو ملتا ہے تو وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کعبہ اس کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ اس عشق کی طرف کیوں جاتے ہو جہاں تمہارے آنسوؤں کی قدر نہیں؟ آؤ اس عشق کی طرف چلتے ہیں۔ تم سوتے ہو اور وہ محبوب راتوں کو تمہارے لیے روتا ہے، تم ہنستے ہو اور وہ رو رو کر آنسو گرا گرا کر آنسوؤں کی سوگات پیش پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آؤ تو اس محبوب کی طرف جس کی محبت میں ناکامی نہیں، بچہ کرے تو کامیاب ہو جائے، جوان کرے تو کامیاب ہو جائے، بوڑھا کرے تو کامیاب ہو جائے، مرد کرے تو کامیاب ہو جائے، عورت کرے تو کامیاب ہو جائے۔ ارے جب ہاں اسی مدینے کے دلدار سے اگر کوئی عشق کرتا ہے، اگر اویس کرتے ہیں تو اپنے وقت کے سید التابعین بن جاتے ہیں۔ عورتوں میں اگر چھوٹے قد کی کالے رنگ کی کوئی عورت رابعہ کی شکل میں کرتی ہے تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں عشق رسول کتنی بلندی عطا کرتا ہے۔ لوگوں کے پاس نشے کے خلاف تقریریں تو ہو سکتی ہے، نشے کے مخالفت میں نعرے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا علاج نہیں، اس لیے کہ اہل حسن کے لیے میرے رب نے حسن بھی پیدا فرمایا ہے، اہل عشق کے لیے میرے کریم نے ایسا جلوہ پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم وہ جلوہ بھی کیسا جلوہ ہوگا کہ جس کو بنانے کے بعد خود ہی پیار سے 100 مرتبہ تکتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو فرمائے، بلکہ اس جلوے کو ہی نہیں تکتا جو آنکھیں اس محبوب کا دیدار کرتی ہے، خدا اس آنکھوں کو بھی تکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے جو نوجوان عشق میں ناکام ہو کر کے نشے کی طرف جا رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کسی کے زلف و رخسار کی بات نہ کرو، آؤ اس کی زلفوں کی بات کرو جس کی زلفوں کو خدا واللیل کہہ کر اس کی قسمیں یاد کرتا ہے، اور اگر وہی زلفیں جب سور جاتی ہے تو خدا اسے ودہا کہتا ہے اور ان کے رخ ودہا کی قسم یاد کرتا ہے۔ آؤ اسی سے محبت کریں جس کی محبت کی دعوت میرے اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ معارج النبوہ میں ہے، علامہ معین الدین فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے تمہارا کلام جتنے قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تمہارے جسم سے تمہاری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تمہاری آنکھوں سے تمہاری نگاہ جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ جناب کلیم کہتے ہیں مولا کیوں نہیں، یقیناً میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب ہو جا، میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ تو ارشاد ہوا موسیٰ اس سے عشق کر لے جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے؟ ارشاد ہوا وہ آمنہ کا لال محمد ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ محبت رسول کی دعوت، محبت رسول کی دعوت اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، حالانکہ وہ سب محبت کرنے والے تھے، تو نشے کے اندر لوگ مبتلا ہیں اس لیے کہ عشق میں ناکام ہو گئے۔ نادان اس پاگل پن کی طرف کیوں جاتا ہے
जो तुझे तबाह करता है उसकी तरफ क्यों जाता है जिसे तेरे आंसुओं का ख्याल नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल तो अपने आशिकों को भी जानते हैं, उनके बाप के नाम के साथ जानते हैं, उनके बुरे आमाल देखकर उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, उनके अच्छे आमाल देखकर उनसे खुश होते हैं। आप गौर तो फरमाएं, लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। आकाए करीम के दीवानों, ये नशा क्या है? अल्लाह अकबर। ये इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश है। जब अंदलुस की सरजमीन पर तारिक इब्ने जियाद ने इस्लाम का परचम लहराया तो उन लोगों ने उस मुल्क को मुसलमानों से वापस लेना चाहा। तो सोचा कि मुसलमानों से हम तलवारों के बल पर मुल्क को वापस नहीं ले सकते। तो क्या किया? उन्होंने नशे को आम किया उस मुल्क में और मुस्लिम जवानों को नशे का इतना आदी बना दिया कि जब मुसलमान शराब व शबाब में डूब गए तो जिस मुल्क को वो तलवार और ताकत के बल पर वापस नहीं ले सकते थे, उन्होंने सिर्फ मुसलमान जवानों को नशे में गिरफ्तार करके उस मुल्क को वापस लिया। आप क्या समझते हो हमारे साथ ये साजिश की जा रही है? मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के अंदर नशे को जो है वो आम किया जा रहा है, नशीली दवाओं को आम किया जा रहा है ताकि बच्चा बच्चा नशे के अंदर मुब्तला हो जाए। और लोग नशे में जो गिरफ्तार होते हैं उसकी वजह यह भी है कि अल्लाह अकबर, जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी सोहबत में बैठने वाला जब बैठता है तो फिर उसको भी नशे का शौक होता है। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई नशा करने वाला मोहल्ले में हो तो हम अपनी औलाद को उसके करीब न बैठने दें, उसकी सोहबत इख्तियार करने न दें। इसलिए कि सोहबत इंसान को बनाती भी है, सोहबत इंसान को बिगाड़ती भी है। नशा करने वाले पहले अपनी जेब से लोगों को नशा करवाते हैं। वो जानते हैं जिस दिन ये नशे का आदी हो गया फिर ये अपनी जेब से हमें नशा करवाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, 12-12, 15-15 साल के बच्चे नशे के अंदर डूब रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, बुरी सोहबत से बचाओ। अगर अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाकर नेक सोहबत की तरफ लाना चाहते हो तो सुन्नी दावत इस्लामी के करीब करो, आपका बच्चा नेक बनेगा। जानते हैं शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं गुस्ल कर रहा था, मैंने मिट्टी को अपने बदन पे मलना शुरू किया, मिट्टी से गुलाब की खुशबू आई। मैंने मिट्टी से पूछा, ए मिट्टी बता तुझमें गुलाब की खुशबू कैसे पैदा हो गई? तू तो मिट्टी है, महकना तेरा काम नहीं, महकते तो गुल किया करते हैं, लेकिन तू किस तरह महक रही है? तो मिट्टी ने जवाब दिया कि ऐ सादी, मैं चंद दिन गुलों की सोहबत में रही, उनकी खुशबू मेरे अंदर भी बस गई। पता चला अगर नेकों की सोहबत में इंसान रहता है तो नेकियों के असरात पैदा हो जाते हैं। इसलिए जुआरियों के, शराबियों के, चोर और डकैती करने वालों के साथ अपने बच्चों को हरगिज न रखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, फिल्मों के जरिए से ऐसे ऐसे इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, फिल्मों के जरिए से इस तरीके के नशे को आम करने का तरीका बताया जा रहा है कि उस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, जो लोग नशे के आदी हैं वो कहते हैं अब हम आदी हो गए, अब हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सोच करके बैठेंगे कि हम नशा छोड़ नहीं सकते तो आप कभी नहीं छोड़ सकेंगे। बस इख्तिताम पर इतनी बात कहना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि माँ के दूध से लजीज और कौन सी शय हो सकती है? यूं तो तमाम गिजाओं के अंदर दूध सबसे बेहतरीन गिजा है, वो प्यास भी बुझाता है, वो भूख भी खत्म करता है। जब जानवरों के दूध की तारीफ कुरान में अल्लाह ने फरमाई है तो माँ के दूध की शान क्या होगी? माँ का दूध वो है जब कोई गिजा हजम नहीं होती तब बच्चा माँ का दूध पीता है। आप मुझे बताएं, 2 साल तक के जब हम माँ का दूध पीते पीते जब बढ़ने लगते हैं, एक वक्त आता है माँ दूध छुड़ाती है और बच्चा छोड़ता भी है। आप मुझे बताओ, जब माँ का लजीज दूध 2 साल तक के पी पी कर अगर इंसान छोड़ना चाहे
تو उसको छोड़ सकता है, तो शराब के कड़वे घूंट को वो क्यों नहीं छोड़ सकता? वो कुत्ता गोलियों के कड़वे टेस्ट को क्यों नहीं छोड़ सकता? वो भंग और अफीम को क्यों नहीं छोड़ सकता? बस बात इतनी है, लोगों नहीं दुनिया से मोहब्बत करते, नहीं दुनिया से प्यार करते, कम से कम अपने आप से तो प्यार करो, अपनी जान से तो प्यार करो। सुन लो, जिस दिन इंसान नशे का आदी होता है, उस दिन के बाद से 20 साल से ज्यादा उसकी जिंदगी नहीं बचती। 20 साल के अंदर अंदर वो हलाक हो जाता है। अमेरिका के साइंसदानों ने, अल्लाह अकबर, जिस वक्त कुत्तों को सिगरेट पिलाई, उसमें निकोटीन होता है 10 मिलीग्राम एक सिगरेट के अंदर, और 5 साल तक के जब उन्हें सिगरेट का आदी बनाया गया तो इब्तिदा में तो उनकी आंखें लाल लाल हो जाती थी, लेकिन जब वो आदी हो गए तो जैसे ही सिगरेट का धुआं जहां होता था, जब वहां दरवाजे के करीब पहुंचते तो वो खुशी से दुम हिलाने लगते। लेकिन वो कुत्ते, 20 कुत्तों को जब सिगरेट का आदी बनाया गया तो उसमें से 5 साल की कलील मुद्दत के अंदर 5 कुत्ते फेफड़े खराब होकर के मर गए। इसलिए कि कुत्तों का इंतखाब इसलिए किया गया था कि इंसान के फेफड़ों में और कुत्तों के फेफड़ों में बहुत ज्यादा मुशाबहत है। तो 5 साल के अंदर वो कुत्ते मर गए। किससे? सिर्फ सिगरेट से। और सिगरेट से ज्यादा नशा हेरोइन और इस जैसी दिगर लगवियात और खुराफात में होता है। आप मुझे बताएं कि इंसान जिस दिन नशा करता है और नशे का आदी होता है, 20 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं रहती और फिर नामर्दगी का शिकार हो जाता है, उसकी मर्दाना ताकत खत्म हो जाती है। नशा करने वालों में ज़नखों की तादाद बढ़ती जा रही है और नामर्दों की तादाद बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक तो इंसान जब नशे का आदी होकर अपनी मर्दानगी खो देता है, मर्दाना ताकत खो देता है, तो फिर चादर डालकर चेहरे छुपा छुपा कर बिस्तर में रोता है। लेकिन उस वक्त वो बीवी के काबिल नहीं रह जाता और फिर अल्लाह अकबर, बीवियां तलाक मांगने लगती है, घर उजड़ने लगता है। और अगर कोई शरीफ बीवी उसके पल्ले में भी हो, अगर शरीफ बीवी को उसका पाला पड़ जाए, अगर वो शराफत की वजह से तलाक ना भी मांगे, वो सब्र करे, तो फिर 20 साल से ज्यादा उम्र ही क्या रह जाती है। फिर वो मौत के मुंह में चला जाता है। जब वो कब्र का गड़ा देखता है तब उसको होश आता है, लेकिन उस वक्त का होश उसको काम नहीं देता, उस वक्त का होश उसको सहारा नहीं देता। वो तड़पता है, वो बिलकता है, वो अल्लाह अकबर मौत के मुंह में पहुंचकर बेचैनी का शिकार होता है। लेकिन फिर दुनिया की कोई ताकत उसको मौत से बचा नहीं पाती और जवानी में वो मौत की नींद सो जाता है कब्र के अंदर। और शराब और नशे की वजह से वहां भी उसे चैन नहीं मिलता, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाता है। उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, तालीम से महरूम हो जाते हैं, बीवी बेवा हो जाती है, वालिदैन बेसहारा हो जाते हैं। जरा सोचो तो सही, ये नशा घर घर को बर्बाद कर रहा है, फैमिली को तबाह कर रहा है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को खराब कर रहा है। थोड़ी देर के नशे के लिए अपने आप को तबाह मत करो, अपनी फैमिली को तबाह मत करो, अपने बच्चों को तबाह मत करो। कम से कम नहीं अपने आप को देखते तो अपने बच्चों की तरफ देखो, अपनी जवान बीवी की तरफ देखो, अपने माँ बाप की तरफ देखो। भाइयों, यतीम बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, बेवा औरतों को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता। ये नशा है जो इंसान को चोर भी बनाता है, इसलिए कि नशा करने वाला कोई बहुत बड़ा बादशाह तो होता नहीं कि वो अपनी दौलत की बुनियाद पर सिर्फ नशा ही करता रहे। जब वो रातों दिन नशे में बेहोश पड़ा रहेगा तो वो कमाएगा कब, और फिर वो काम कब करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो बैठे बैठे दरिया का पानी खत्म होता है, उसकी दौलत उसे कब तक सहारा दे सकती है। फिर नशा करने वाला जरूर चोरी भी करता है, जुआ भी खेलता है। इसीलिए लोगों का जब तसव्वुर वहां तक नहीं जाता था, मेरे अल्लाह ने कुरान में शराब, नशे को और जुए को साथ में बयान किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब और जुए से बचो। इसलिए कि जितने नशाबाज लोग हैं वो सोचते हैं कि जब थोड़ी देर होश आया है तो कम वक्त में ज्यादा पैसे कमा लें, और उसके लिए उनको जुए के अलावा कोई और सहारा और रास्ता नजर नहीं आता। और जब वो जुए के अड्डों पर पहुंचते हैं
تو रही सही पूंजी भी खत्म कर देते हैं। जब बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं तो उस वक्त तो उन्हें होश आता है सब तो खो दिया, और फिर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो चोरी की राह पर लग जाते हैं, वो जिना की राह पर लग जाते हैं। ऐसे नशा करने वालों को भी देखा गया, अखबारात में पढ़ा गया, जिन्होंने अपनी बेटी को नशे के एवज में गिरवी रख दिया। ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद है, जहां पर आमाल की इस्लाह की जरूरत पड़ेगी, सुन्नी दावत इस्लामी अमल की इस्लाह करती है। अकायद की इस्लाह की जरूरत पड़ेगी, अकीदे की इस्लाह भी करती है। और जहां पर समाज में इस तरीके की बुराइयां पैदा होगी, सुन्नी दावत इस्लामी उन बुराइयों के खात्मे के लिए भी कोशिश करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहबाब, हमारे साथी जो है वो इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुबल्लिगीन 3-3 दिन के काफले में, 10-10 दिन के काफले में जब नौजवानों को ले जाते हैं और सफर करते हैं, तो बेफज़ल ही ताला काफलों की बरकत से, इज्तिमात की बरकत से, अल्लाह वालों के आस्थानों की बरकत से, अल्लाह अकबर, जो है वो लोग नशे को छोड़ देते हैं और दीन की तरफ आते हैं। और एक बात आपको बताऊं, नशे का इलाज जहां किसी मजहब में नहीं, वहां किसी मसलक के पास भी नहीं है, सिवाय अहले सुन्नत व जमाअत के। असर का वक्त हो रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। देखो, लोग कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो जो आला क्वालिटी का लोहा होता है, जब वो अदना क्वालिटी पर चलता है, तो फिर अदना क्वालिटी वाला लोहा आला के आगे कट जाता है, चाहे ऊपर चले चाहे नीचे चले, ऊपर चले या नीचे चले। अब नशे का खात्मा हो कैसे? हथकड़ियां डाल करके खात्मा नहीं किया गया। अमेरिका ने 1967 के अंदर, 67 के अंदर 300 लोगों को नशे की पादाश में सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन आज तक वो नशे पे कंट्रोल नहीं कर सके। नशे पे कंट्रोल कैसे होगा? नशे पे कंट्रोल होगा नशे के जरिए से। नशे पर कंट्रोल नशे के जरिए से होगा। और वो कौन सा नशा है जिसकी बुनियाद पर नशे से हम नशे पे कंट्रोल कर सकते हैं? तो वो गोलियों का नशा नहीं है, वो शराब का नशा नहीं है, वो एमडी का नशा नहीं है, वो किसी और चीज का नशा नहीं है। ये वही नशा है जो बिलाल को मिला है, उसे इश्क़े रसूल का नशा कहते हैं। ये वही नशा है जो वैसे करनी को मिला है, जिसे इश्क़े रसूल कहते हैं। ये वही नशा है जो अबू बकर को मिला, उमर इब्ने खत्ताब को मिला, उस्मान ज़ुन्नूरैन को मिला, अली मुर्तज़ा को मिला, साद और सईद को मिला, तलहा व ज़ुबैर को मिला, बगदाद के गौसुल आज़म को मिला, अजमेर के ख्वाजा को मिला, देवा के वारिस को मिला, बरकतुल्लाह इश्क़ी महरवी को मिला, इमाम अहमद रजा बरेली के ताजदार को मिला। तो ये सब अपने वक्त के इमाम बन गए। उसी इश्क़ रसूल के नशा को लोगों पे तारी कर दो, लोग शराब के नशे को भूल जाएंगे। नशे के बाद इंसान बहकता है। इश्क़ मुस्तफा का नशा वो है, जितना चढ़ता जाता है, बहकना तो दूर की बात, बल्कि वो रस्ते का रहबर बन जाता है, आसमाने हिदायत का सितारा बन जाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमें इन नशे का बाइकाट करते हुए इश्क रसूल की तरफ, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत की तरफ आना होगा। यही इश्क है जो दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। इमाम फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।